Now stream function. When motion is the same in all planes parallel to xy plane, say here we can take any other plane, yz plane, zx plane, and there is no velocity parallel to z axis, that is when the components uv are functions of xy only and w is equal to 0, we may regard the motion as, in this case the motion is considered as two dimensional and consider only the cases confined to the xy plane. Also, when we speak of the flow across a curve in this plane, we shall mean the flow across unit length of a cylinder whose trace on the xy plane is the curve in question, that is the generators of the cylinder being parallel to z axis. इसका मतलब क्या है कि when we speak of the flow across a curve in this plane, जब हम इस प्लेन में मीन्स xy प्लेन में फ्लो की बात कर रहे हैं अक्रॉस एक कर्व के अक्रॉस किसी फ्लो की बात कर रहे हैं, तो तब हमारा ये मीनिंग होता है कि फ्लो अक्रॉस मीन्स हम किस फ्लो की बात कर रहे हैं, द फ्लो अक्रॉस यूनिट लेंथ ऑफ ए सिलेंडर, यानी कि एक यूनिट लेंथ का सिलेंडर जिसका ट्रेस क्या होता है, ट्रेस बी द इंटरसेक्शन ऑफ ए 3 डायमेंशनल सरफेस एंड द प्लेन. Here when we are speaking about xy plane, then trace of the cylinder is z is equal to 0, and when we are taking yz plane, then the trace of the cylinder is x is equal to 0 and so on. On the xy plane is the curve in the question, वो कर्व होगी क्वेश्चन में जो कि पूछा गया है. अक्रॉस मीन्स हम कर्व जो यहाँ पर लेंगे वो एक यूनिट लेंथ का सिलेंडर होगा जिसका जो ट्रेस है वो एक्स वाई प्लेन में होगा. द जनरेटर्स ऑफ द सिलेंडर बीइंग पैरेलल टू द जेड एक्सिस, जो जनरेटर होंगे सिलेंडर के उन्हें हम लेंगे पैरेलल टू द जेड एक्सिस. फॉर ए 2 डायमेंशनल मोशन इन एक्स वाई प्लेन, अगर हम 2 डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं एक्स वाई प्लेन में, मीन्स वेलोसिटी q इज हैविंग द कंपोनेंट ओनली u एंड v which are dependent on x, y and t, means x, y, t are the variables of the velocity q. In this case, the differential equation of the streamlines are given by dx by u equal to dy by v, that is इसको सिंप्लीफाई करेंगे v dx minus u dy equal to 0. this will be the equation first. Also in this case the corresponding equation of the continuity is divergence of q equal to 0. divergence of q equal to 0. this gives curly u by curly x plus curly v by curly y equal to 0. this be the equation second. Here what we see that the equation second is the condition of exactness of the equation first, मीन्स इक्वेशन जो सेकंड है वो एग्जैक्टनेस की कंडीशन है ऑफ इक्वेशन फर्स्ट की टू बी डिफरेंशियल. सो इक्वेशन फर्स्ट मस्ट बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल. ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है क्योंकि जो इसके एग्जैक्टनेस की कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो रही है इन इक्वेशन 2 में. इफ दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल देन इट इज इक्वल टू some function, some differential, say d psi. this gives v dx minus u dy equal to d psi. and what is d psi? d psi can be written as curly psi by curly x dx plus curly psi by y curly dy, curly psi by curly y into dy. from here comparing the coefficients of dx and dy, on both side we have u equal to minus curly psi by curly y, v equal to curly psi by curly x.
here the function psi is called the stream function or the current function or Lagrange's stream function. The streamlines are given by the solution of the first, and we have taken v dx minus u dy is equal to d psi, means that the solution d psi equal to 0 gives the streamlines. D psi equal to 0, that is psi equal to constant. And if we are studying it, the flow in unsteady flow, then the streamlines are given by phi is equal to function of t time in case of unsteady flow. Thus the stream function is constant along a streamlines. अगर हम streamlines के along stream function find out करते हैं तो उस केस में चाहे आप steady flow लो चाहे unsteady flow, some psi means stream function होता है constant. This discussion, from the above discussion, it is clear that the existence of stream function is merely a consequence of continuity and incompressibility of the fluid. फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल था, उसके थ्रू जो हमारे पास में कॉन्टिन्यूटी की इक्वेशन आई है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही हम ये स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट कर पाए हैं. दैट इज द स्ट्रीम फंक्शन ऑलवेज एग्जिस्ट्स in all types of the two dimensional motion, whether rotational or irrotational. क्योंकि हमने यहाँ पे देखे रोटेशनल और इरोटेशनल का कुछ भी हमने कंसिडर नहीं किया है. फ्लो चाहे रोटेशनल या इरोटेशनल है, इन बोथ केसेस वी कैलकुलेट साई मीन्स स्ट्रीम फंक्शन, क्योंकि स्ट्रीम फंक्शन ओनली डिपेंड करता है इनकम्प्रेसिबिलिटी ऑफ द कॉन्टिन्यूटी पर एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी ऑफ द फ्लो पर. हावेवर ये तो था स्ट्रीम फंक्शन की बात, बट अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी पोटेंशियल की, वो तो केवल एग्जिस्ट करता है व्हेन द फ्लो इज रोटेशनल मीन्स मोशन इज इरोटेशनल. मीन्स दोनों में एक तो मेन डिफरेंस ये आ गया स्ट्रीम फंक्शन एंड वेलोसिटी पोटेंशियल में. वेलोसिटी पोटेंशियल तो केवल इरोटेशनल मोशन के लिए ही कैलकुलेट करते हैं, इरोटेशनल मोशन है उसी केस में वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा. But stream function exists in all type of two-dimensional motions, whether it is rotational or irrotational. Now physical interpretation of the stream function means इसकी physical importance क्या है. Let us consider a point P on a curve C. Here this be the curve C, this be the point P in xy plane. Let an element ds of the curve makes an angle theta with x-axis. This be the x-axis, then some element makes an angle theta. The direction cosines of the normal at point P are cos 90 plus theta, cos theta and 0. ठीक है, चलो we discuss this one by this figure. This angle is theta implies this angle equal to theta, both are equal. As ये है आपका n cap, this be the normal to the tangent, this one tangent पर है means this whole angle is 90 degree, means angle 2 plus angle 3 equal to 90 degree. अगर आप फर्स्ट कंपोनेंट फाइंड आउट करोगे नॉर्मल के एट पॉइंट पी पर, तो वो होगा कोसाइन ऑफ होल दिस एंगल, कोसाइन ऑफ होल दिस एंगल. अगर आप सेकंड कंपोनेंट फाइंड आउट करोगे देन सेकंड कंपोनेंट हो जाएगा वी से राइट डायरेक्शन में टू नॉर्मल तक हम एंगल फाइंड आउट करेंगे मीन्स विथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, means v to this angle, this will be the angle 3, cosine of angle 3 and here z तो है नहीं, z तो 0 है, means we are discussing only two dimensional case. Now this angle is theta means angle 1 is equal to theta है, angle 2 plus 3 is equal to 90 degree, angle 2 plus 3 is equal to 90 degree
एंड एंगल 3, यहाँ से एंगल 3 निकल जाएगा 90 डिग्री, 90 माइनस एंगल 2। अब व्हाट इज एंगल 2? एंगल 2 क्या है? बिकॉज यू एंड वी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यहाँ से ये होल तो बन गया 90 डिग्री, एंगल 1 है थीटा, मीन्स एंगल 2 इज इक्वल टू 90, एंगल 2 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, एंगल 2 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। देन एंगल 3 की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करोगे तो क्या है, ये तो होल तो है 90 डिग्री, एंगल 3 इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल 2, और एंगल 2 हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, मीन्स एंगल 3 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, मीन दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू थीटा। यहाँ से आ गया एंगल 3 इक्वल टू थीटा। अगर आप बात करो कंप्लीट एंगल की, दिस विद द एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू होल इज 90, दिस विद द थीटा 90 प्लस थीटा। नाउ to calculate the cosines of the normal at point P, first component is cosine of this angle, and this angle क्या था, ये एंगल 90 प्लस थीटा, देन cosine of 90 प्लस थीटा। सेकेंड कंपोनेंट के लिए एंगल cosine of एंगल 3, दैट इज थीटा कोस थीटा, एंड थर्ड वन इज 0, मीन्स इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में हमारे पास में नॉर्मल आ गया माइनस साइन थीटा कोस थीटा and 0. Also we calculate the flow across the curve C के across flow find out किया from right to left this direction में, right to positive direction में, right to left is this with the formula of a flow का फॉर्मूला लगाया, इंटीग्रल ओवर C Q डॉट एन कैप ds, वेयर एन बी द नॉर्मल हम फाइंड आउट कर चुके हैं ऑलरेडी, एन कैप इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप, क्यू बी द वेलोसिटी विद कंपोनेंट्स यू आई प्लस वी जे। नाउ यूजिंग द वैल्यूज ऑफ क्यू एंड एन कैप वी ऑब्टेन्ड दिस इज इक्वल टू माइनस यू साइन थीटा प्लस वी कोस थीटा डी एस। ऑल्सो what is u in case of stream function, u equal to minus curly psi by curly y and v equal to curly psi by curly x. Then using these values here we obtained this integral over c curly psi by curly y sin theta plus curly psi by curly x cos theta into ds, and this is equal to integral over c. नाउ अब हमने साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से, साइन थीटा इक्वल होता है डी वाई बाई डी एस के, एंड कोस थीटा इक्वल होता है डी एक्स बाई डी एस से। देन यूजिंग दीज वैल्यूज दिस इज इक्वल टू कर्ली साई बाई कर्ली एक्स, साइन थीटा की जगह यूज किया डी एक्स बाई डी एस, कर्ली बाई साइन थीटा की वैल्यू पुट की डी वाई बाई डी एस, एंड कर्ली साई बाई कर्ली एक्स कोस थीटा की वैल्यू पुट की हमने डी एक्स बाई डी एस। इसको रीअरेंज किया, यहाँ से थ्रू आउट देखो डिनोमिनेटर में डी एस है, डी एस को बाहर निकाला, हो दिस बाहर वाला डी एस से कैंसिल आउट हो गया, तो देन दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर सी कर्ली साई बाई कर्ली एक्स डी एक्स प्लस कर्ली साई बाई कर्ली वाई डी वाई, एंड ये क्या है, दिस बी द स्ट्रीम, दिस इज इक्वल टू डी साई। जैसे कि हमने स्ट्रीम फंक्शन को कैलकुलेट करते टाइम वैल्यू फाइंड आउट की थी, इसको हमने बोला था कि दिस इज डिफरेंशियल, दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल, सो इट इज इक्वल टू सम डी साई, देन दिस इज इक्वल टू डी साई, एंड डी साई इसका इंटीग्रेशन आप निकालोगे तो दिस इज इक्वल टू साई बी माइनस साई ए, where what is psi a and psi b? Psi a and psi b are the values of psi at the initial and the final points of the curve. Thus the difference of the values of a stream function at any 2 points represents the flow across that curve joining the 2 points, means stream function के through हम क्या find out कर सकते हैं, flow across the curve joining 2 points, point A and B. This will be the physical interpretation of the stream function. One corollary also, if we suppose that the curve C be the stream lines, यहाँ पर जो हमने कर्व C डिस्कस की थी, अगर वो होते हैं कोई स्ट्रीम लाइन्स, then no fluid crosses its boundary,
देन देयर इज़ नो फ्लो अक्रॉस द बाउंड्री। वो क्यों? बिकॉज वी नो दैट देयर इज़ नो फ्लो अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ ए स्ट्रीम लाइन्स। अगर स्ट्रीम लाइन्स के अक्रॉस कोई फ्लो नहीं होगा उस केस में देन डी साई इक्वल टू ज़ीरो। देर इज़ नो फ्लो स्ट्रीम लाइन्स के केस में फ्लो नहीं है मीन्स फ्लो इज इक्वल टू जीरो। और फ्लो को हमने कैलकुलेट किया था साई बी माइनस साई ए, दिस इज इक्वल टू जीरो मीन्स साई इज इक्वल टू साई ए। मीन्स अब यहाँ पर साई क्या हो जाएगा? दिस बी द कॉन्स्टेंट अलोंग सी बी द स्ट्रीम लाइन्स। मीन्स स्ट्रीम लाइन्स के अलोंग अगर आप स्ट्रीम फंक्शन फाइंड आउट करते हो तो वो कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा, दिस बी द कॉन्स्टेंट। Now we find out the relation between velocity potential phi and the stream function psi. इसको हम CR इक्वेशन भी बोलते हैं बिकॉज phi एंड psi दोनों CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। एक बार देखते हैं इसका रिलेशन क्या है। velocity potential phi is given by we know that q is equal to minus del phi। del phi को ओपन किया इज इक्वल टू माइनस करली फाई बाई करली एक्स करली फाई बाई करली वाई। क्यू के कंपोनेंट को कंपेयर किया राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, दिस इम्प्लाइज u इज इक्वल टू माइनस करली फाई बाई करली एक्स, v इज इक्वल टू माइनस करली फाई बाई करली वाई, वेयर u एंड v आर द कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी q। ठीक है, दिस विद द इक्वेशन फर्स्ट। स्ट्रीम फंक्शन साई हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। साई की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की थी? साई की वैल्यू कैलकुलेट करते टाइम हमने u इज इक्वल टू फाइंड आउट किया था, u इज इक्वल टू माइनस करली साई बाई करली वाई, v इक्वल टू करली साई बाई करली एक्स। अब देखो ये दिस भी द इक्वेशन नंबर 2। ये भी u की वैल्यू है, ये भी u की वैल्यू है, तो मीन्स दोनों सेम होनी चाहिए, बोथ शुड बी सेम। कंपेयरिंग दिस वन वी हैव करली फाई बाई करली एक्स इज इक्वल टू करली साई बाई करली वाई। अगेन ये भी v की वैल्यू है, ये भी v की वैल्यू है, मीन्स बोथ शुड बी सेम। करली फाई बाई करली वाई इक्वल टू माइनस करली साई बाई करली एक्स, दिस भी द इक्वेशन 3। मीन्स इक्वेशन 3 को अगर आप फाइंड आउट करो, इक्वेशन 3 से अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करते हो डेल स्क्वेयर फाई, देन डेल स्क्वेयर फाइंड आउट करते हो तो ये वैल्यू आएगी जीरो। डेल स्क्वेयर फाई क्या हो जाएगा? करली स्क्वेयर फाई बाई करली एक्स स्क्वेयर, मीन्स इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे आप, करली स्क्वेयर फाई बाई करली एक्स स्क्वेयर, उसकी वैल्यू आ जाएगी करली स्क्वेयर साई बाय करली एक्स करली वाई, प्लस करोगे करली स्क्वेयर फाई बाई करली वाई स्क्वेयर, मीन्स इसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो आएगी आपकी वैल्यू माइनस ऑफ करली स्क्वेयर साई बाई करली वाई करली एक्स। यानी कि राइट साइड में तो क्या होगी? कैंसिल आउट हो जाएंगे, वैल्यू आएगी जीरो, मीन्स वहाँ से आ जाएगा डेल स्क्वेयर फाई इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली डेल स्क्वेयर साई इक्वल टू जीरो, मीन्स यहाँ पर फाई और साई बोथ ने लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। दीज आर हार्मोनिक फंक्शंस। एनी फंक्शन विच सेटिस्फाई लैप्लेस इक्वेशन आर सेड टू बी हार्मोनिक फंक्शंस। ये दोनों हार्मोनिक फंक्शन हो गए। अगेन अगर आप अब हम फाइंड आउट करते हैं रिलेशन बिटवीन फाई एंड साई, क्या कैलकुलेट करते हैं हम? डेल फाई फाइंड आउट करते हैं। डेल फाई इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई, दिस इज इक्वल टू माइनस क्यू की वैल्यू रखी हमने माइनस ऑफ यू आई प्लस वी जे। नाउ यू, क्योंकि हम फाई ऑलरेडी लेके चले हैं तो हम यू को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ साई। इक्वेशन नंबर सेकंड से u इज इक्वल टू माइनस करली साई बाई करली वाई पुट किया, v इज इक्वल टू करली साई बाई करली एक्स पुट किया, इसको और सिंप्लीफाई किया, करली साई बाई करली वाई आई कैप प्लस करली साई बाई करली एक्स जे कैप, देन आई कैन बी रिटर्न एज जे क्रॉस के एंड जे कैन बी रिटर्न एज माइनस ऑफ आई क्रॉस के। एक माइनस ये एंड ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस मीन दिस विद द प्लस साइन। दिस इज इक्वल टू करली साई बाई करली वाई करली साई बाई करली एक्स आई कैप प्लस करली साई बाई करली वाई जे कैप होल क्रॉस में के। अब ये क्या बन गया? दिस विद द डेल साई क्रॉस के कैप, मीन डेल साई क्या है? दिस विद द ग्रेडियंट ऑफ साई क्रॉस के कैप। यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड आउट की, ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ साई क्रॉस के कैप। अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट का ऑर्डर चेंज करते हो देन दिस विद द माइनस ऑफ के कैप क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ साई। यानी कि रिलेशन आ गया आपका साई में एंड फाई में। क्या रिलेशन है? डेल फाई इक्वल टू डेल साई क्रॉस के कैप। अगर आप इक्वेशन थर्ड से ही नोट करोगे, फिर से इक्वेशन नंबर थर्ड देखिए। इक्वेशन नंबर थर्ड में गिवन है करली फाई बाई करली एक्स इक्वल टू करली साई बाई करली वाई एंड करली फाई बाई करली वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ करली साई बाई करली एक्स। यहाँ से अगर आप प्रोडक्ट फाइंड आउट करो, करली फाई बाई करली एक्स करली फाई बाई
curly phi by curly x into curly psi by curly x, एज curly phi by curly x की वैल्यू किसके इक्वल है, curly psi by curly y, एंड curly psi by curly x की वैल्यू किसके इक्वल है, माइनस ऑफ curly phi by curly y। इसको रीअरेंज किया, इधर लेके आए। नाउ दिस इज curly phi by curly x, curly psi by curly x प्लस curly psi by curly this with the psi, curly psi by curly y, curly phi by curly y इक्वल टू लेफ्ट साइड में आप लेके आए तो दिस इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है, दिस विद द डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल फाई एंड डेल साई, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल फाई एंड डेल साई मीन्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस वन 0। यहाँ से क्या हुआ, अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो मीन्स दीज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। Thus, for irrotational, incompressible, two-dimensional flow, steady और unsteady flow कैसा भी हो, phi xy and psi xy are harmonic functions, क्योंकि दोनों ने CR इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है, then these are harmonic functions and the family of the curves, अगर आप फैमिली ऑफ द कर्व्स की बात करोगे, phi is equal to constant, वो क्या होते हैं, इक्विपोटेंशियल्स, and psi equal to constant, that are the streamlines intersect orthogonally। दिस विद द रिलेशन बिटवीन दिस, एक तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 5 में जो गिवन है रिलेशन, और एक इक्वेशन नंबर 4 में गिवन है दिस, दीज आर द रिलेशंस बिटवीन phi एंड psi, बिटवीन वेलोसिटी पोटेंशियल एंड स्ट्रीम फंक्शन।